everybody, welcome back. This is Sonia from Learn India Pro. So as I promised in the previous session, we'll be starting the Dropper to Doctor course today, Dropper to Doctor batch today, the fresh brand new course at Learn India Pro. Here today is the first class of this. Basically today is the orientation class for this Dropper to Doctor batch today. Now today what we'll be doing basically is I'll be introducing what is the course about. Okay, what are the features of the complete course. The next thing we'll be doing is we'll be seeing how we'll be going through the course and what is the complete syllabus of biology section. Okay, so we'll be doing this complete part today, and from the next session we'll be starting from the first chapter beginning from the syllabus itself. Okay, so from today, in today's class, what we'll be doing is the orientation class, wherein I'll begin with the NEET part. Okay, so NEET, as everybody knows, it's a national level test for the medical entrance, right? For the MBBS seats all over the country, right? So it is the medical entrance test, which is common eligibility test. So this complete course will be including the biology section. I'm repeating again and again, this course will be including the biology section. If we get a better response from your side, we'll be surely starting physics and chemistry on the later part. Okay, so first today I'm initiating this biology course, the Dropper to Doctor course. Okay, now in today's session, first thing is how we'll be proceeding with the course. Now first thing is the lectures, how you will be getting the lectures. Now this lectures will be regularly posting on YouTube. Apart from that, we'll be also posting them on Telegram channel. Okay, now on the Telegram channel, we have a channel, Learn India Pro. You can watch from there. Now if you subscribe to our Telegram channel, on Telegram just type Learn India Pro, you'll be getting the Telegram channel there. Now if you subscribe there, what are the benefits? It's completely free of cost. Okay, first thing is it's completely free of cost. What are the benefits of joining there is that there are regular questions which are uploaded there for your quiz. It's a regular quiz which is being done there. Already the students are there who are attempting that regular quiz. Second thing is the classes which you'll be viewing here, they'll be also posted there. Next thing is there will be several question discussions which will be going on there. Any new type of question or any different type of questions, teachers will be uploading there. Next thing is that any study material, if it's extra, will be uploading there on Telegram channel only. Okay, so if you want to avail all these benefits, you can just subscribe. It's zero cost. Okay, so there's zero cost on this. You can just subscribe to our Telegram channel. Okay, so let's begin with the Dropper to Doctor course. We'll start what is the part of NEET. Now everybody knows this part which I'm initiating with, that is the NEET part. So NEET, as we know, it has the 3 subjects. There are 3 subjects which you have to study in NEET. And what are the 3 subjects? That is physics, chemistry and biology, right? Now today we are initiating with the biology course. So biology, right? Now what are the number of questions which are coming in NEET? So as per the current record, there are 180 questions which are coming in NEET examination, wherein 45 questions are from physics, 45 questions are from chemistry, and rest 90 questions are from biology. So it means that NEET has 50% partition, wherein the 50% is from physics and chemistry and rest 50% is biology. अब देखो बायोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है पढ़ना, राइट? सो नेक्स्ट जो 50% है वो किससे है? बायोलॉजी से है. एंड आई विल बी डीलिंग विद द कंप्लीट बायोलॉजी, बोथ बॉटनी एंड जूलॉजी. बहुत अच्छे से करेंगे, वीडियोस भी देखेंगे, बहुत फन तरीके से करेंगे. ओके, so this is about biology. Each question in NEET is of 4 marks, and if you do, guys, if you do a wrong question, if you attempt it wrongly, you will be rewarded as -1. Okay, so it will be -1. So overall, अगर आप कोई question गलत करते हो, so you will be losing 5 marks. 4 marks for the question and 1 mark as a negative mark. Okay, so ऐसे प्रैक्टिस करना है, ऐसे करना है कि अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो हम आंसर तक, करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएं और नेगेटिव मार्क कम से कम हो.
Okay, now moving on to the syllabus for biology. This is biology section. Now moving on to the biology syllabus. Now biology syllabus, as we know, नीट का जो एग्जाम है इसमें दोनों ही बायोलॉजी के पार्ट्स, क्लास 11th की बायोलॉजी और क्लास 12th की बायोलॉजी, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस साल हमने देखा कि बायोलॉजी में से अगर 52% के अराउंड जो है वो क्लास 11 से आया था, दो दे आर मोर चैप्टर्स इन क्लास 11th और क्लास 12th में दे आर जस्ट 16 चैप्टर्स, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज रहता है। ओके, सो नीट बायोलॉजी सिलेबस कंप्राइजेस ऑफ क्लास 11th wherein there are 22 chapters which you have to do, and class 12th wherein there are 16 chapters which are equally important. They are equally important. Okay, so in whole you have to do these 38 chapters. So let's begin with the introduction of syllabus. Okay, सी बहुत से टीचर्स होंगे जो ये बोलेंगे कि एनसीईआरटी अच्छी नहीं है, यहाँ ये बुराइयां हैं, यहाँ ये बुराइयां, बट अकॉर्डिंग टू मी एनसीईआरटी जो बुक है वो बहुत ही अच्छे से लिखी हुई है। हैट्स ऑफ टू दोस पीपल हु हैज रिटन दीज बुक्स, बट दे आर इक्वली गुड। ओके, उनका जो कंटेंट है, जैसे अरेंज किया हुआ है, दे आर वेरी नाइसली प्रेजेंटेड ओवर देयर। बहुत अच्छे से हम सिलेबस को आज एक अलग तरीके से देखने वाले हैं। अब तक जो आपने सिलेबस देखा होगा, इंडेक्स देखा होगा एनसीईआरटी का, और आज जो हम इंडेक्स देखेंगे बहुत एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ओके, एकदम थोड़ा रिवर्स करके देखेंगे और थोड़ा अच्छे से देखेंगे कि कैसे, कितने अच्छे से उन्होंने चैप्टर्स का अरेंजमेंट किया है, हाउ वेल दे हैव अरेंज्ड द कंप्लीट सिलेबस। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि कैसे सिलेबस है और हम कैसे कैसे पढ़ने वाले। ओके, नाउ बच्चों लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज बायोलॉजी। नाउ व्हाट इज बायोलॉजी? बायो मीन्स लाइफ, एवरीबडी नो। मैम ये क्या बता रहे हो नया, ये तो सबको पता ही है, राइट? बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी, सो स्टडी ऑफ लाइफ इज बायोलॉजी, राइट? अब बायोलॉजी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज लिविंग है और कौन सी चीज लिविंग नहीं है, क्योंकि हमें तो लाइफ की स्टडी करनी है ना। पहले तो हम छांट लेंगे चीजों को, पहले विल सेपरेट द थिंग्स कि पहले पता तो हो ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, राइट? तो बायोलॉजी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज लिविंग है और कौन सी चीज लिविंग नहीं है। सो फर्स्ट चैप्टर विल बी डीलिंग विद द लिविंग वर्ल्ड। So the first chapter, the very first chapter is the living world. Next what we see is, अब living world है तो बहुत सारे organisms है हमारी अर्थ पे, तो बहुत सारे organisms है, बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनका अब तक हमने डिस्क्रिप्शन भी नहीं दिया है, राइट? अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में 7 million different types of species are present on this earth and we have just described about 1.75. हर साल बहुत सारी नई स्पीशीज का डिस्क्रिप्शन आता है, बट स्टिल हमने अब तक सारे जो अर्थ पे स्पीशीज है उनको डिस्क्राइब नहीं किया है। So there are lots of species on this earth wherein we need to categorize them. हमें उनको categorize करने की जरूरत है, उनको classify करने की जरूरत है, ताकि हमारी पढ़ाई, हमारी स्टडी जो है वो easy रहे। तो इसी चैप्टर में, इसी लिविंग वर्ल्ड में what we see is कि हमने जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, अलग अलग कैटेगरीज में ग्रुप्स बना दिए ताकि स्टडी इजी रहे। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे स्कूल में भी ग्रुपिज्म चलता है, राइट? ग्रुपिज्म कैसे कि फॉर स्टडिंग, फॉर बेटर स्टडी और एफिशिएंट स्टडी आप लोगों को डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन योर ग्रेड्स या बेस्ड ऑन योर रैंक्स। फॉर क्लास 11, क्लास 12, क्लास 1, 2, 3, ऐसा तो नहीं होता कोई भी बच्चा किसी भी क्लास में जाके बैठ जाता है। इट इज लाइक बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन योर नॉलेज, कि आपको कितनी नॉलेज है उस हिसाब से आपको उस क्लास में बिठाया जाता है, राइट? बेस्ड ऑन योर एज ऑल्सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सो दैट इज based on these factors, based on these similarities, you have been classified into different classes in your school. Same way हम organisms को भी ऐसे ही classify करते हैं। So next chapter में हम ये देखते हैं कि ऐसे कैसे classify किया हुआ है। So the next chapter is about biological classification. So the next chapter is biological classification and we get to know कि अलग अलग classification के methods क्या क्या है। Okay, now we see that in this chapter biological classification में हमने organisms को basically 5 kingdom में classify किया है। So what are these 5 kingdoms? These 5 kingdoms are Monera, next is Protista, next is Fungi,
The next is Plantae and Animalia. राइट, ये 5 किंगडम्स हैं जिनमें हमने सारे ऑर्गेनिजम्स को, ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया है. ओके, सो इस चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो डिटेल है वो किन 3 किंगडम्स की है, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम 3 किंगडम्स पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई. प्लांटे एनिमेलिया भी करेंगे बट थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन. सिंस प्लांटे और एनिमेलिया बहुत बड़ा किंगडम है, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है यहाँ पे, तो इसके लिए हमने एक अलग चैप्टर बना दिया, एनसीईआरटी वालों ने एक अलग चैप्टर बना दिया है. सो देयर कम्स दी थर्ड चैप्टर, दैट इज प्लांट किंगडम. क्योंकि मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई तो हम यहाँ पढ़ लेते हैं सेकंड चैप्टर में, प्लांट किंगडम को हम नेक्स्ट में अच्छे से पढ़ते हैं. सो दैट इज प्लांट किंगडम. नेक्स्ट चैप्टर प्लांट्स के बाद हम क्या पढ़ेंगे, एनिमल. सो एनिमल किंगडम. अब बच्चों अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज की स्टडी कर रहे हैं, राइट. अब अगर तुम्हें मेन जो हिरार्की याद है, ऑर्गेनाइजेशन याद है, तो उसमें क्या था, उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ ऑर्गन सिस्टम से बनता है. जरूरी नहीं है ऑर्गन सिस्टम हर एक ऑर्गेनिज्म में हो, राइट. ये हमें पता है कि जरूरी नहीं है कि ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गन सिस्टम लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में हो. फॉर एग्जाम्पल पॉरीफेरा, फॉर एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थ्स, इनमें ऑर्गन सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, राइट. सो यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गन सिस्टम में हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर ऑर्गन्स में ऑर्गेनाइजेशन हो. इसके बाद टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन आती है और टिश्यू से सेल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन आती है, राइट. तो हमें पता है, हमने अभी तक इन 4 चैप्टर्स में ऑर्गेनिज्म देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज है. ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन जरूरी नहीं है कि हो, बट टिश्यूज ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं. तो इसके बाद हमें जो पढ़ना है अकॉर्डिंग टू दिस लेवल, दैट इज कि हमें टिश्यूज पढ़ने हैं. व्हाट आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, प्लांट्स में कौन से टिश्यूज हैं, एनिमल्स में कौन से टिश्यूज हैं. उससे पहले तो प्लांट्स का हमें ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स बाहर से कैसे दिखते हैं. देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, राइट. बाहर से अलग अलग प्लांट जो है, अलग अलग वेराइटी का, अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं उनमें, राइट. तो हमें पहले तो वो पढ़ना है कि एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है, राइट. So external appearance के लिए the next chapter is the morphology of flowering plants. क्या है morphology of flowering plants? Morphology मतलब external appearance. तो ये क्या है, external appearance के basis पे that is morphology of flowering plants. इसके बाद हम देखेंगे उसके internal features, उसके अंदर के features, plants के अंदर के features. So next is your anatomy of फ्लावरिंग प्लांट्स. क्या है, अनाटमी है प्लांट्स की. अनाटमी है सारे प्लांट्स की कि अंदर से उसमें क्या क्या टिश्यूज की अरेंजमेंट है, कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है, किस लेवल पे प्रेजेंट है, किसमें नहीं है, किसमें है. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टिश्यूज का पढ़ेंगे. अब प्लांट्स की बात तो कर ली, अब नेक्स्ट किसकी करनी है, एनिमल्स की. तो अब नेक्स्ट चैप्टर क्या आ गया, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन animals. Structural organization in animals. तो अब देखो हमने क्या किया, ऑर्गेनिज्म की बात कर ली, हमने टिश्यूज देख ली. नेक्स्ट बच्चों, अब तुम अपने आप समझदार हो, नेक्स्ट क्या करना है, सेल. तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, सी. कितनी अच्छी अरेंजमेंट की है ना एनसीईआरटी ने, एकदम लेवल से, हर एक लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन की है, चैप्टर्स को भी वैसे ही अरेंज किया है. ओके, सो द नेक्स्ट चैप्टर इज सेल, द यूनिट ऑफ life. So as we know, the cell is a fundamental unit of life. So the next chapter is cell. इसके बिना कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं होता है. सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, राइट. ओके, अब सेल की बात कर ली. अब सेल जो है वो आगे किस चीज से बना है, सेल भी किसी ना किसी मॉलिक्यूल से बना है, राइट. बायो मैक्रोमोलिक्यूल से बना है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल से बना है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिससे बना है. तो सेल जो है प्रोटीन से बना है, कार्बोहाइड्रेट से बना है, लिपिड से बना है, न्यूक्लिक एसिड से बना है. तो सेल इज मेड अप ऑफ बायो molecules. See how beautifully they have arranged the chapter. The next chapter is biomolecules, right. The next chapter is biomolecules. Now
अब देखो सेल पढ़ लिया, अब जो भी लाइफ चल रही है ये किस वजह से चल रही है, ये सेल डिवीजन पे चल रही है ना। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो एक से दो सेल बनाएंगे, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें भी तो सेल डिवीजन होगी ताकि मल्टी सेलुलर एक बॉडी बने, राइट। सो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है, द 10th चैप्टर इज अबाउट सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, कि एक सेल की साइकिल क्या है, वो कैसे जीता मरता है, कैसे डिवाइड करता है, वो क्या है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन। बच्चों ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअल में यही तुम्हारा बेस बनाता है रिप्रोडक्शन चैप्टर का नेक्स्ट ईयर। ओके, जेनेटिक्स का बेस। अगर ये चैप्टर क्लियर नहीं है तो आगे जो प्रॉब्लम हो जाती है समझने में, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में। बट ये चैप्टर हम बहुत इजीली करेंगे, कुछ बॉलीवुड की स्टोरीज भी करेंगे इसके बेसिस पे, और बहुत अच्छे से इन चैप्टर्स को करेंगे, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। मूविंग ऑन, सी अब तक हमने क्या किया, हमने ऑर्गेनिजम्स पढ़ लिए, हमने देख लिया कि वो बने कैसे हैं, टिश्यू से बने हैं, सेल से बने हैं, बायोमोलिक्यूल से बने हैं, ये सारा देख लिया, राइट। अब हमें क्या देखना है, वो काम कैसे कर रहे हैं, अगर प्लांट्स है वो काम कैसे कर रहे हैं, एनिमल्स है वो काम कैसे कर रहे हैं, हाउ दे आर एक्चुअली वर्किंग। तो सबसे पहले हम क्या इसमें देखेंगे, अब प्लांट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मीन्स हाउ दे आर वर्किंग, हाउ द सिस्टम्स आर वर्किंग, जो जो चीजें प्रेजेंट है वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज कैसे कर रहे हैं। तो अगर किसी प्लांट के लिए देखूं, इफ आई टॉक अबाउट एनी प्लांट, लेट्स से दिस इज अ प्लांट, सो इफ आई टॉक अबाउट एनी प्लांट, तो प्लांट जब काम करेगा सो देयर आर सर्टेन फंक्शंस इट हैज टू डू। सबसे पहले तो इसको सॉइल से अपने न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, या डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज जो है वहां से न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, वाटर लेना है, वाटर तो हवा से लेता नहीं है, वो तो सॉइल से ही लेता है, मेजर न्यूट्रिएंट्स भी सॉइल से लेता है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है, राइट। तो इसमें जो पहला चैप्टर आता है प्लांट फिजियोलॉजी में, दैट इज चैप्टर नंबर 11, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब वो जो इतने सारे मिनरल्स ले रहा है, वाटर ले रहा है, उसका ट्रांसपोर्ट भी तो चाहिए। अब लीव्स फूड बना रही हैं तो उसका ट्रांसपोर्ट भी तो चाहिए स्टोरेज ऑर्गन में या न्यू सिंक ऑर्गन्स में। सो दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इसके बाद अब जैसे ही मैंने बात की कि न्यूट्रिशन लेता है, बहुत सारे मिनरल्स लेता है, तो वो कौन कौन से मिनरल्स है, उनकी जरूरत क्या है, क्यों वो इतने मिनरल्स ले रहा है, क्या जरूरत है, कितने मात्रा में चाहिए, कौन सा ज्यादा चाहिए, कौन सा कम चाहिए। सो दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन इज द नेक्स्ट चैप्टर। नाउ मूविंग ऑन, सी अब प्लांट्स जो है मिनरल्स तो ले लिया, अब करना क्या है, उनका काम क्या है, प्लांट्स का बेसिकली काम क्या है, उनको अपना खाना बनाना, उनको फूड बनाना है, बिकॉज दे आर द मेजर पार्ट ऑफ योर फूड चेन। सारे जितने भी हीटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैं दे आर डिपेंडेंट अपॉन दीज ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हर्बीवोर्स तो डायरेक्टली है और कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स जो हैं वो इनडायरेक्टली भी है, राइट। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरी हीटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट अपॉन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो इसको खाना बनाना है, खाना कैसे बनाता है, बेसिकली विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सन से एनर्जी लेके फिर उसको कन्वर्ट करता है और फूड बनाता है। सो वी नो द लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट, इजीली। तो लाइट एनर्जी को प्लांट्स, सी हाउ मैग्निफिसेंट प्लांट्स आर, प्लांट्स कितने ज्यादा काम करते हैं, एक जगह पे पूरी जिंदगी बिता देते हैं और कितना काम करते हैं, राइट। हमें लगता है कुछ नहीं कर रहे हैं, खड़े हैं एक जगह, बट एक जगह खड़े खड़े भी वो पूरे रेगुलेशन करें फूड चेन का, राइट। तो प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, फूड चेन में लाइट से, सन से एनर्जी लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी, इनटू द फॉर्म ऑफ फूड, फूड में कन्वर्ट करते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है आगे, राइट। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज photosynthesis. What they do is they synthesize the food with the help of light, sunlight, photosynthesis. अब plants हैं, जिंदा हैं, तो respire भी करेंगे, right? So the next chapter is respiration in plants. Now see, this chapter respiration in plants is basically not about only respiration in plants. बच्चों यही respiration method हम में भी होता है, यही respiration method बैक्टीरिया में भी होता है, सब में कॉमन है, बट डिपेंड करता है कि ऑक्सीजनिक एनवायरनमेंट है या एनऑक्सीजनिक, मतलब एरोबिक है या एनारोबिक एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पे जो हम रेस्पिरेशन करेंगे ये सिर्फ प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे, बल्कि हम रेस्पिरेशन जो करेंगे वो
ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिजम्स का देख लेंगे, यूकैरियोट में कैसा होता है, प्रोकैरियोट में कैसा होता है, ओके, एनारोबिक एनवायरनमेंट में कैसा होता है, एरोबिक एनवायरनमेंट में कैसा होता है. सो दैट वी विल सी हियर, दैट इज रेस्पिरेशन प्लांट्स. अब प्लांट जो है एक सीड से बनता है, राइट, सीड से सैपलिंग, सैपलिंग से फिर मेच्योर करता है बाद में. तो उसकी कुछ ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, इट डेवलप्स इनटू एक सीड से. सोचो तुम पूरा एम्ब्रियो बन रहा है और फिर उसके बाद उससे लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स, फ्लावर्स सब बन रहे हैं, राइट. तो उसकी कुछ डेवलपमेंट होगी, कुछ हॉर्मोन्स होंगे जो उसको बना रहे होंगे. सो द नेक्स्ट थिंग इज the 15th chapter is, that is plant growth and development. Plant growth and development. See, till now we don't have confirmation that whether NEET में syllabus reduce होगा या नहीं होगा. So right now what I'll do is will do all the chapters. फायदा ही है करने में, नुकसान नहीं है, पढ़ाई में कभी नुकसान नहीं होता है. ओके, बाद में अगर डिलीट हो जाए तो गुड, राइट. सो ये जो सारे चैप्टर्स हैं हम इनिशियली करेंगे, जो जो इनिशियली नीट के सिलेबस में था हम सब करेंगे. ओके, ना प्लांट्स की बात तो कर ली, अब आते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, राइट. एनिमल्स पे आते हैं, और एनिमल्स में हमारे लिए सबसे कौन सा इंपॉर्टेंट है, हम खुद, राइट. सो दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी. सो नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी. नाउ टॉकिंग अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी, स्टार्ट किससे करेंगे, खाने से, राइट. सो सबसे पहले द ऑर्गेनिज्म, द ह्यूमंस, व्हाट दे डू इज दे हैव फूड, राइट. अब देखो कितने अच्छे से चैप्टर्स अरेंज किए हुए हैं. विल डू हाउ ब्यूटीफुली दे हैव अरेंज्ड द चैप्टर्स. इनिशियली व्हाट हैपेंस इज कि फॉर द कंप्लीट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट any organism need food. So same way even humans need food, and when humans then take food, they are holozoic organisms, and these organisms they need to digest their food. इनको अपना खाना डाइजेस्ट करना पड़ता है, राइट. तो क्या होगा, खाना खाएंगे, डाइजेशन होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा और फिर वो ब्लड में जाएगा. सो दिस चैप्टर इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. सो द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. अब देखो खाना तो ले लिया, अब खाने से एनर्जी भी तो बनानी है. खाना किस लिए लिया, एनर्जी बनाने के लिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए, राइट. अब खाने को बर्न करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन कंबशन करवाना है. अगर आपको कोल वगैरह कुछ भी जलाना है, एनर्जी चाहिए, तो आप क्या करते हो, कोल का कंबशन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट. सेम वे यहाँ भी ऑक्सीजन चाहिए, ह्यूमंस को भी ऑक्सीजन चाहिए. सो नेक्स्ट चैप्टर इज ब्रीदिंग एंड exchange of gases, where we'll be seeing that how oxygen is taken in and carbon dioxide is released out, right. So breathing and exchange of gases. Next chapter is breathing और exchange of gases. अब देखो फूड भी ले लिया, ऑक्सीजन भी ले ली, अब क्या करना है, सेल्स तक पहुंचाना है, राइट. सेल्स तक पहुंचाने के लिए पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए. जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको वापस से उनके अलग अलग मोड के थ्रू, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिलीज आउट करना है, अगर नाइट्रोजनस वेस्ट है किडनी तक पहुंचाना है. सो अलग अलग मोड के थ्रू उनको रिलीज आउट भी करना है. तो ये पूरा बॉडी में सिस्टम चल रहा है. ये क्यों चल रहा है, बिकॉज देयर हैज टू बी सम ट्रांसपोर्ट सिस्टम, राइट. कुछ ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जो ये पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन वर्क कर रहा है. एंड हाउ इट इज हेल्पिंग इज, दैट इज योर सर्कुलेटरी सिस्टम which is pumping all the things, which is helping in transport system. It is acting like plumbing system. जैसे घर में plumbing system होता है ना, प्लम्बर पाइप्स लगाते हैं, ये सब ऐसे ही हमारी बॉडी का भी एक प्लम्बिंग सिस्टम है. दैट इज योर सर्कुलेटरी सिस्टम. अब देखो खाना खा लिया, ऑक्सीजन ले ली, सर्कुलेट भी कर दिया, अब क्या होगा, वेस्ट जनरेट होगा, राइट. वेस्ट जनरेट होगा. तो द नेक्स्ट चैप्टर is excretory waste or excretion. Okay, excretory waste, or I'm just writing excretion, right. Next is, अब देखो एनर्जी क्यों ली थी, काम करने के लिए ली थी. बेसिक काम क्या होता है, लोकोमोशन, मूवमेंट, मूव करके हम अपने काम कर लेते हैं, बैठे बैठे भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी तो होती ही है, राइट. तो ये सारी जो एनर्जी अब किस में आएगी यूज, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जहां काम किसका होगा, मसल्स और स्केलेटन सिस्टम का. तो यहाँ मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम करेंगे. नेक्स्ट थिंग इज, अब देखो इतना सारा काम हो रहा है हमारी बॉडी में, इतना ज्यादा काम हो रहा है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स करते हैं, राइट. ये सारा चीज हमारे अंदर हो रही है, डाइजेशन हो रहा है, ब्रीदिंग एक्सचेंज हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, लोकोमोशन, ये सारा कोऑर्डिनेटेड वे में होना चाहिए ना.
ऐसा तो नहीं है हमने खाना खाया ही नहीं और वेस्ट बने जा रहा है, या ऐसा नहीं है कि हमने खाना खा लिया ऑक्सीजन तो ली ही नहीं। ये सब कुछ कोऑर्डिनेटेड वे में होना चाहिए। सो कोऑर्डिनेशन के लिए देयर आर टू सिस्टम्स, वन इज नर्वस सिस्टम, अनदर कोऑर्डिनेशन मेथड इज द केमिकल सिस्टम। ओके, एक कोऑर्डिनेशन नर्वस से होता है, दैट इज थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, अनदर इज थ्रू केमिकल्स। सो हमारे पास दो चैप्टर्स यहाँ पे आ गए, एक तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आई एम जस्ट राइटिंग नर्वस सिस्टम, and another is chemical control and coordination. Okay, so here we finished the class 11th syllabus, but actually हुआ नहीं है, I have just explained the syllabus. See how beautifully they have arranged the chapters. Okay, so these 22 are the chapters of क्लास 11th। अब देखो ह्यूमन को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम नेक्स्ट में भी, और सेम यही प्रोसेसेस को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब सी, जो ये लाइफ है, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, ये सस्टेन कैसे कर रहे हैं? इट इज थ्रू रिप्रोडक्शन। वरना अगर सोचो रिप्रोडक्शन नहीं होता तो एक स्पीशीज आती, वो रिप्रोड्यूस नहीं करती, अपनी जनरेशन अपना वंश आगे नहीं बढ़ाती, तो क्या होता? वहीं खत्म हो जाती, उसके आगे नहीं होता कुछ भी। सो द नेक्स्ट chapters, next unit in class 12th starts with the reproduction part. Okay, so very first chapter in class 12th is the reproduction। और reproduction initially हम जो देखते हैं that is in all organisms, अलग अलग टाइप का reproduction method है। For example, asexual reproduction, sexual reproduction, vegetative methods, right? तो reproduction in organisms। सेकेंड वी सी इज कि इतने सारे जो फ्रूट्स वगैरह बन रहे हैं, इतने सारे जो प्लांट्स हैं, ये कैसे बन रहे हैं, राइट? तो ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो विल बी सीइंग दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन flowering plants, right? Next is human reproduction. Next is human reproduction. Now see, after independence our population grew like anything. There was a population explosion, right? एकदम से population बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। So there came the aspect of, or there came the awareness, the importance of awareness to be created among the masses for the reproductive health, right? ये जो awareness है, ये create करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी regarding the population explosion, regarding the sexually transmitted disease, regarding the problems or the issues which are faced by the infertile couples। तो ये सब के लिए we have the chapter that is reproductive health, and which is very important chapter। छोटा सा चैप्टर है, लगता चिंटू सा है, बट है बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, इट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नेक्स्ट मूविंग ऑन, अब देखो रिप्रोडक्शन देख लिया, अब हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म, सपोज तुमने एक मैंगो का सीड लिया, तो उसे मैंगो का ही ट्री निकलेगा ना, कोई और तो ट्री निकलेगा नहीं, एप्पल तो उससे मिलेंगे नहीं, राइट? अगर कोई ह्यूमन है तो इट विल गिव बर्थ टू ह्यूमन ओनली। तो यहाँ पे आता है जेनेटिक्स का काम, मतलब कि हमने जो सेम ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसा ही दूसरे ऑर्गेनिज्म को बर्थ दे रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वहां पे ऐसी चीज है जो कंट्रोल करे, जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रही है। सेम वे अगर हम इंडिविजुअल्स में भी देखें, किसी एक स्पीशीज में भी देखें, तो जो ऑफस्प्रिंग है वो मैच करता है अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, उसी फैमिली से, उसी लिनिएज से, राइट? सो ये क्यों है? देयर इज सर्टेन इंफॉर्मेशन विच इज कैरीड फ्रॉम मदर एंड फादर टू द ऑफस्प्रिंग। कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन तो है। सो दैट इज द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसफर। ये जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, दैट इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। सो therefore what are the basis of this? ये क्यों हो रहा है? क्या लॉज हैं? क्यों चीजें ट्रांसफर हो रही है? कैसे हो रही हैं? कौन सी किस में एक्सप्रेस करेगी, कौन सी एक्सप्रेस नहीं करेगी? So that is the next chapter, that is principles of inheritance। See how beautifully the chapters are linked with each other। Okay, अब देखो इंफॉर्मेशन हम बोल रहे हैं कि ठीक है कैरी हो गई, लेकिन ये इंफॉर्मेशन अपने आप को बताती कैसे? सपोज कि मदर से एग के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आया, ऐसे ही फादर का डीएनए आया, ये डीएनए आगे कैसे बताएगा भाई? कैसे बताएगा कि ये इंफॉर्मेशन कैरी करनी है, ये प्रोटीन्स बनाने हैं, ऐसे बाल होनी चाहिए, ऐसी आंखें होनी चाहिए? कैसे? थ्रू प्रोटीन्स, अपने आप को एक्सप्रेस करके ही तो बताएगा। सो दैट इज एट मॉलिक्यूलर लेवल। उसको हम नॉर्मली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी बोलते हैं, बट इट इज मॉलिक्यूलर बेसिस of inheritance। It is nothing but the molecular biology। Okay, it is molecular basis of inheritance। Very important chapters, very important chapter, inheritance। Okay, next is see,
अब मैं बोल रही हूँ कि ऑर्गेनिज्म जो है वो तो सिमिलर होता है, अच्छा ठीक है मान लिया सिमिलर होता है, सिमिलर होता है तो इतने अलग अलग टाइप के क्यों हैं, एग्जैक्टली सिमिलर क्यों नहीं है, या इतनी नई स्पीशीज कैसे बन जाती है, या पुरानी स्पीशीज खत्म कैसे हो जाती है, इतनी सारी जो डाइवर्सिटी हम देख रहे हैं ये क्यों है, इसके भी तो अलग अलग मैकेनिज्म है, राइट। सो नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट एवोल्यूशन, कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोग हैं, ये कैसे बने हैं, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स बिहाइंड इट, सो दैट इज एवोल्यूशन चैप्टर। नाउ मूविंग ऑन बच्चों, यहां तक हम कर लेते हैं ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स। इस टाइम पे हमने बात नहीं की है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, हम ज्यादातर बात इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की नहीं की है। अब आते हैं हम और ऑर्गेनिजम्स की तरफ। ओके, अब माइक्रोब्स की बात करते हैं। माइक्रोब्स जो है दे आर हार्मफुल ऑल्सो, दे आर बेनिफिशियल ऑल्सो, दोनों चीज है, इनके प्रोज भी है कॉन्स भी है, कुछ अच्छे भी है कुछ बुरे भी है, राइट। पहले देख लेते हैं इनकी थोड़ी बुराई। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट हेल्थ एंड डिजीज, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई भी बीमारी हमें क्यों होती है और कैसे हम उनसे बचते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, हमारी हेल्थ कैसी है, और डिजीजेस ये पैथोजेंस क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हमें बीमारियां हो जाती है। सो दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज हेल्थ एंड डिजीज। नाउ मूविंग ऑन, ये जितना भी प्रोसेस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे ही मैंने बोला कि ये बुरे भी है अच्छे भी है, सो अच्छे पार्ट भी देख लेते हैं इनका कुछ। तो अच्छा पार्ट कम्स इन दी नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। नाउ सी, हमारा जितना भी सिस्टम है, हमारी जितनी भी सोसाइटी है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स ऑफ फूड, सबकी डिफरेंट फूड हैबिट्स है, सबका डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स है, राइट। किसी का खाना अलग है, कहीं कुछ उगता है कहीं कुछ उगता है, सो बेस्ड ऑन दैट स्टेपल फूड भी अलग है, राइट। सो यहाँ पे सिंस आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, मैल नरिशमेंट ज्यादा है, अगर हम उगा भी रहे हैं खाना, हम एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, सो इट इज नॉट दैट एफिशिएंट कि उसमें रिसोर्सेज मिनरल ज्यादा है, बच्चे खाना खा भी रहे हैं बट स्टिल दे हैव डेफिशिएंसी, एक दो डेफिशिएंसी है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, विटामिन की डेफिशिएंसी है। सो ये जो है फूड एनहांसमेंट, हमें अपने खाने को एनहांस करने की जरूरत है, हमें अपने खाने में मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की एनरिचमेंट करने की जरूरत है। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज हाउ डू वी एग्जैक्टली डू इट, इट इज नॉट always about vegetarian food, it is also about the non-vegetarian food, how do we grow them on a larger scale। ओके, उसकी ईल्ड कैसे बढ़ाए, छोटे से लैंड पे, सिंस हमारी लैंड जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, जितनी जमीन है उतनी ही है, उससे ज्यादा नहीं है, राइट, बट पॉपुलेशन तो बढ़ ही जा रही है, राइट, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा ही जा रहा है। सो व्हाट हैपेंस इज, इसलिए हमें जरूरत है कि हम कम जमीन पर, कम जगह में भी अपना फूड ज्यादा कैसे बनाए, ज्यादा नरिशमेंट कैसे करें, ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच कैसा फूड हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोल रहे हैं कि वी हैव टू लुक टू ओशियंस, वी हैव टू लुक टूवर्ड्स मरीन फूड ऑल्सो, राइट। तो वो सब एनरिचमेंट कैसे होता है, सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, ये सारा आएगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज स्ट्रैटेजीज इन फूड एनहेंसमेंट, स्ट्रैटेजीज इन फूड प्रोडक्शन और फूड enhance production of food enhance, right। So this is the next chapter। now moving on, see, इंसान जो है वो अपने आप को भगवान समझने लगे, राइट, इंसान अपने आप को भगवान समझने लगा है और वो चाहता है कि सब कुछ उसकी मुट्ठी में हो, सब कुछ उसकी मुट्ठी में हो, तो इसीलिए उसने एक अलग अलग टेक्निक्स बनाई हैं जिससे वो और ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल कर सके। कई बार ये जो टेक्निक्स होती हैं बहुत अच्छी होती है और हमारे फायदे के लिए होती है, हर चीज के प्रोज और कॉन्स होते हैं, राइट, तो ये कई बार हमारे फायदे के लिए भी होती है। और यहाँ पे हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी, कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा इसमें एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अभी अगर तुम्हें पता है, तुम्हें एनालिसिस पता है कि डायबिटीज जो है, डायबिटीज जो बीमारी है, इट इज बिकमिंग कॉमन एंड कॉमन, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट धरती पे ऐसा बोला जाता है कि हमारे वर्ल्ड में हर 7वां इंसान, एवरी 7th पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। ओके, every 7th person, see the burden, the diabetic burden on this world, कि हर 7वें इंसान को डायबिटीज है। अब डायबिटीज है तो क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए, राइट। अब इंसुलिन चाहिए तो उसके लिए यू नीड टू गिव देम इंसुलिन, राइट, you need to give those patients insulin so that they can access or they can use the glucose which is present in their blood, right।
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंसुलिन देना पड़ेगा। अब इंसुलिन कहाँ से मिलेगा, इंसुलिन प्लांट्स तो बनाते नहीं है, माइक्रोब्स भी नहीं बनाते हैं, कौन बनाता है, एनिमल्स बनाते हैं, हायर एनिमल्स बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं, ह्यूमंस। अब तुमसे कोई इंसुलिन मांगने लगोगे तो देगा क्या, नहीं, कोई नहीं देगा इंसुलिन, कोई भी नहीं देगा, राइट। और देंगे भी क्यों, सबकी बॉडी अपना अपना इंसुलिन बना रही है, राइट। अब जिनकी नहीं बना रही है उनको उस इंसुलिन की जरूरत है, राइट। तो उस केस में पहले क्या करते थे, एनिमल से इंसुलिन ले लेते थे, लेकिन एनिमल्स के इंसुलिन का क्या पार्ट है कि वो एक फॉरेन पार्टिकल है। हमारी बॉडी जो है एलर्जिक रिएक्शन, इन्फ्लेमेशन, ये सब शो करती थी, साइड इफेक्ट शो करती थी। तो अब कैसा इंसुलिन चाहिए, जो ह्यूमन से मैच करता हो, जो हमसे मैच करता हो, ताकि हमारी बॉडी रिएक्शन ना शो करे, जिसको एक आम भाषा में रिएक्शन बोल देते हैं, राइट। रिएक्शन ना शो करे, साइड इफेक्ट ना शो करे, तो उसके लिए हमें एक इंसुलिन चाहिए जो हमारे इंसुलिन से मैच करता हो। मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि मेरे अंदर जो इन्फॉर्मेशन है इंसुलिन की, मेरे सेल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है इंसुलिन बनाने की, उस इन्फॉर्मेशन को मैं एक बैक्टीरिया के अंदर डाल देती हूँ। अब डीएनए जो है, डीएनए का जो कोड है वो यूनिवर्सल है। पढ़ा है हमने माइक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कि डीएनए का कोड यूनिवर्सल है, मतलब जो लैंग्वेज मेरे अंदर है वही लैंग्वेज वो पढ़ेगा, राइबोसोम सेम लैंग्वेज पढ़ेंगे, राइट। अगर मान लो प्रॉब्लम क्या होती है, मुझे इंग्लिश आती है, तुम्हें हिंदी आती है, राइट, तो मैं तुम्हें इंग्लिश में कोई डॉक्यूमेंट देती, तुम उसे पढ़ नहीं पाते, क्या फायदा, राइट। अनदर थिंग इज, लेट्स से कि मुझे भी हिंदी आती है, तुम्हें भी हिंदी आती है, ओके, अपनी मातृभाषा हिंदी मुझे भी आती है, तुम्हें भी आती है। तो अब हिंदी में क्या होगा कि मैं अगर कोई डॉक्यूमेंट तुम्हें दूंगी, तुम इजीली उसे पढ़ लोगे, राइट, तुम इजीली उसे पढ़ लोगे, और उस जो भी उसमें लिखा होगा वो कर भी लोगे, फॉलो भी कर लोगे, राइट। सेम वे हमारा जो डीएनए की लैंग्वेज है वो सेम है, यूनिवर्सल है, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म में सेम है। तो जो मेरे अंदर इंसुलिन बनाने की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं अगर बैक्टीरिया में डाल दूं तो बैक्टीरिया पढ़ के इंसुलिन बना देगा, राइट। दिस इज बायोटेक्नोलॉजी। मतलब जो बैक्टीरिया इंसुलिन नहीं बनाता था, मैंने उसको फोर्स किया, अपने तरीके से चलाया, मैंने उसको कमांड किया कि इंसुलिन बनाओ, राइट। सो दिस इज बायोटेक्नोलॉजी। सो दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी। पहले हम देखेंगे कि कैसे करते हैं, सो दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स। फिर हम देखेंगे इसके एप्लीकेशंस क्या है, दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस। ओके, अब आती है लास्ट यूनिट क्लास 12th की, दैट इज इकोलॉजी, जो कुछ बच्चों का तो बहुत ज्यादा फेवरेट होता है और कुछ बोलते हैं कि जब हमें एमबीबीएस करना है तो इसमें क्यों डाला, राइट। बट मेरी मानो तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे के सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सी, हम ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने सब कुछ पढ़ लिया, उनके अंदर क्या है, कैसे हम उनको एनहांस कर सकते हैं, या कैसे हम डीएनए में चेंज ला सकते हैं, कैसे ऑफस्प्रिंग्स रिलेटेड हैं पेरेंट्स से। बट क्या हमने देखा कि ये आपस में इंटरेक्शन कैसे करते हैं। अगर तुम कभी नोटिस करो तो हमारी जो लाइफ है वो एक सोशल लाइफ है, वी आर सोशल ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिजम्स में इंटरेक्ट करते हैं आपस में, और एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी इंटरेक्ट करता है। क्या इस इंटरेक्शन के बिना लाइफ चलेगी? अगर हम प्लांट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे क्या हमारी लाइफ चलेगी? नहीं चलेगी, राइट। तो ये इंटरेक्शन की स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी लाइफ में हर टाइम हम ये चीज कर रहे हैं, ये इंटरेक्शन हम कर रहे हैं। अगर इस इंटरेक्शन को आप नहीं समझ पा रहे हो, सो हाउ यू कैन से कि यू आर अ बायोलॉजिस्ट, आपने बायोलॉजी पढ़ी है, राइट। सो नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, एग्जैक्टली, राइट। सो द नेक्स्ट चैप्टर is about organism and population. कि what are different types of organism, what are their adaptations into the abiotic world, कैसे हम क्लाइमेट, कैसे हम वेदर, कैसे हम सॉइल, वाटर, एयर, इन सबसे इंटरेक्ट करते हैं। दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। नेक्स्ट थिंग इज, अब ये जो इंटरेक्शन है मिलके क्या बनाता है? इकोसिस्टम, राइट। कभी अगर नोटिस किया हो, घर के पास अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां सीमेंट किसी ने रख दी है, बारिश हो गई और वो सीमेंट को किसी ने छेड़ा नहीं है बहुत दिनों तक, छोटे छोटे प्लांट्स, एल्गी उगने लगेंगे, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट, ओके। वो क्यों है? वो एक तरीके का सक्सेशन है कि वहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो कॉलोनाइज करने लगे हैं उसको। सो दैट इज हाउ इकोसिस्टम इज फॉर्मिंग। हम कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म से, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी वैल्यू है उसकी, दैट इज इकोसिस्टम। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास हैं, दैट इज डाइवर्सिटी। और ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनके कुछ यूटिलिटी है, कुछ
फीचर्स है जो जिनके बिना हम नहीं रह सकते। क्या तुम्हें पता है कि कोरल्स की जो इकोनॉमी है या जितना हमें उससे फायदा होता है, दैट इज 9 ट्रिलियन इकोनॉमी। 9 ट्रिलियन की इकोनॉमी वो हमें देते हैं हर साल, और जो कि वो फ्री में देते हैं। सपोज कोरल्स जो काम कर रहे हैं, जो कोरल्स ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, लक्षद्वीप में है हमारे इंडिया में, ये जो कोरल्स काम कर रहे हैं, अगर ये पैसे मांगने लगे तो हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे? $9 ट्रिलियन। मतलब $9 ट्रिलियन की इकोनॉमी खराब हो जाती है अगर हम कोरल्स खराब करते हैं। राइट? कितने कोरल्स खराब होते हैं लक्षद्वीप में, कितने कोरल्स खराब होते हैं अंडमान निकोबार में, गल्फ ऑफ मन्नार में। राइट? ये इकोनॉमी बहुत बड़ी है जिसके लिए हमें इन सारे ऑर्गेनिजम्स को समझने की, उनके प्रोटेक्शन की जरूरत है। इनके बिना हम नहीं सरवाइव करेंगे। मैंग्रोव्स हर साल इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, इतना बड़ा कार्बन सिंक क्रिएट करते हैं कि जितना हम एक्सपल्शन कर रहे हैं वो ले रहे हैं। डू यू नो कि हिमाचल प्रदेश जो है वो ऐसी स्टेट है जो कार्बन न्यूट्रल है? डू यू नो सिक्किम जो है वो कार्बन नेगेटिव है? राइट? मतलब वहां प्लांट्स ज्यादा हैं, जितना वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं उतना उससे ज्यादा तो वो प्लांट्स वो कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब वहां की एयर तो बहुत ज्यादा फ्रेश होगी। राइट? सो दैट इज अबाउट बायोडाइवर्सिटी कि क्यों हम इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, क्यों हमारी गवर्नमेंट जो है, क्यों हमारी मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो है वो इतना ज्यादा काम कर रही है, क्यों हम अपने पर्यावरण पे इतना ध्यान दे रहे हैं, क्यों हमारी कंट्री जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे प्रोजेक्ट्स चला रही है, क्यों इनिशिएटिव ले रही है? बिकॉज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बिकॉज आवर लाइफ इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑल ऑर्गेनिजम्स लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबकी लाइफ उतनी ही इंपॉर्टेंट है। दे आर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स। हम पढ़ेंगे हम क्यों बचा रहे हैं इनको, कुछ हम अपने फायदे के लिए बचा रहे हैं, कुछ हम एथिकल इश्यूज की वजह से बचा रहे हैं, लेकिन बचाना है, उनका सबका हक है जीने का। और अगर तुम लोग इस बात को नहीं समझोगे, बायोलॉजिस्ट इस बात को नहीं समझेगा, तो आई डोंट थिंक सो कोई और समझेगा। राइट? बिकॉज यू आर द वन हु आर स्टडिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, you are the one who should understand what are the feelings of living organisms. Right? So next is, everybody knows that we have created a burden on this earth, on this mother earth. We have created lots of pollution and we have to deal with it. हम सफर कर भी रहे हैं, और अगर हम नहीं समझेंगे तो हमें सफर करना भी पड़ेगा। So what are the mechanism, what are the methods we can save this, what are the methods we can reduce this carbon emissions around? So that is the last chapter, that is environmental ecology or environmental issues. So this is the last chapter, that is environmental issues. So बच्चों, this is the complete syllabus. ये पूरे के पूरे टोटल 38 चैप्टर्स है जो आपको पढ़ने हैं, जो हम पढ़ेंगे, साथ में मिलके पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे बच्चों, एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने फ्रेंड्स को बताइए, जिसको भी बताना है बताइए, और प्लीज बी रेगुलर। और एक डिस्क्लेमर है इस कोर्स के लिए कि प्लीज जिनके लिए भी एमबीबीएस एक बर्डन है, जो मजबूरी में कर रहे हैं, प्लीज इस कोर्स को ना देखें, क्योंकि यहाँ पे हम बातें नहीं करने वाले हैं। वी विल सीरियसली डू ऑल द क्वेश्चंस। एक रिक्वेस्ट है कि जो सिर्फ मस्ती के लिए कर रहे हैं या टाइम पास के लिए कर रहे हैं या सीरियस नहीं है, जिन पे एक बर्डन है कि एमबीबीएस करना है यार और कुछ है नहीं, वो मत देखिए इस कोर्स को, वो मत अटेंड करिए। जिनके लिए, जिनको सीरियसली करना है, जिनको मजे ऐसे नहीं है कि बस टाइम पास के लिए हम देख रहे हैं या हमें तो टीचर को ऐसे ही गप्पे लड़ानी है या कुछ भी, उनके लिए नहीं है, प्लीज नहीं है। ओके? जिनके लिए है वो है सीरियस बच्चे, जिनके लिए है वो है जो सच में सर्विस देना चाहते हैं औरों के लिए। आई एम सॉरी टू से बट दिस कोर्स इज नॉट फॉर यू। ओके? If you are seriously interested, you can join our Telegram channel where we are posting the regular objective test, subjective test for CBSE people. जो बच्चे अभी subjective test CBSE बोर्ड देंगे उनके लिए subjective test regularly अपलोड किए जा रहे हैं, और जो बच्चे अभी आगे 2022 में देंगे, they can also attend this course. उनके लिए बच्चों बहुत अच्छा है ये कोर्स कि आप अभी से क्लास 11th और 12th कर लेंगे। Okay? So from tomorrow, from the next class, we'll be starting with the first chapter, that is living world, and then we'll continue. I'll tell you which all chapters we'll be doing first or later. Most probably we'll be going in order. Okay, so this is the complete syllabus of biology.
With this, I end this session, and I hope you guys will be joining it and will be doing it seriously. Joining का तो मुझे पता है, जो बच्चे serious है वो तो करेंगे. Okay. Okay. And I want those kids only. I don't want others. Okay. So I end this session with this note and hope to meet you in next class. Okay, next session. Thank you very much.